के अभी ये लोग प्रेजेंटेशन अपनी दे देंगे, तो उसके बाद जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हों, जिसके भी क्वेश्चंस हों, यू कैन आस्क, सो दैट जो भी जिसके डाउट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो क्लियर आउट हो जाए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. ओके, Zaki asked the team to take over now. जी, हसन भाई एंड महमूद आप आ जाएं और थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देख के आप अपनी प्रेजेंटेशन शो करना स्टार्ट कर दें. Hello, Assalamu alaikum. I'll just start by introducing myself. मेरा नाम हसन अली है. I'm the senior developer at Azook Studio. ठीक है, और मेरे साथ इस वक्त इस मीटिंग में ज्वाइन किया हुआ है हमारी ओनर ने. ठीक है, जो अजूक स्टूडियो की ओनर है और हमारी मार्केटिंग हेड है. ठीक है, सो वी आर बेसिकली अ ब्लॉकचेन एंड एनएफटी बेस्ड स्टार्टअप. ठीक है, हमारी हिस्ट्री इज लाइक पिछले 1.5-2 साल से मार्केट में. ठीक है, हमने बहुत बड़े बड़े एनएफटी स्टूडियोज के साथ काम किया. and I'll just ask ma'am Ruj to just take over और आप अपना सेशन लें. Thank you, Hassan, and thank you, Zaki, for the introduction. But can you allow me screen sharing rights at the moment? जी मैंने. Okay, thank you. Okay. So, first off, hello everybody. Okay, so हम यहाँ पे बात करेंगे अजूक स्टूडियो में. अजूक स्टूडियो में we usually basically we deal with NFTs, which are non-fungible tokens. I think Zaki ने थोड़ा बहुत आपको introduction दे दिया होगा. These are the kind of tokens that you cannot transfer to each other. These are your own private and personal things. In anything digital, art होगी आपकी, content writing होगी, SEO हो गया, उसमें सब में आपका जो अपना personal experience होगा, जो आपकी personal ownership होगी online, that is basically an NFT. So यहाँ पे particularly I will talk about what Azook Studio offers you, because the time is short, as Zaki told us before. So what is Azook Studio? What is its main goal? The main goal of Azook Studio is that it's a Pakistan UK-based blockchain and NFT startup. Isme we go with blockchain development, because behind every NFT, behind every non-fundable token, there is a blockchain theory, and there's a blockchain development which helps you take the ownership of your NFT. Then there is the NFT development cycle, in which you upgrade your NFT, you make your NFT more accessible to others. And then there is the metaverse development as well, which helps you, in metaverse development, that is basically linked to your investors. In any NFT startup, or whenever you buy an NFT, or whenever you start with an NFT, you are directly linked to the metaverse, as well as your investors. So you have to give them a reason to be interested in your, in your in your NFT. And how do you do that? You develop your metaverse, you make it interesting, you make it a unique selling point for yourself. Then there is the NFT investment advisory. At Azook Studios, we don't only help you make NFTs, but we also help you in advising you that where should you invest your cryptocurrency. क्योंकि NFTs में सारा आपको cryptocurrency में deal करना होता है. Ethereum में, there's Polygon, and there's so many other cryptocurrency as well. तो उसको कहीं भी लगाना, आपको वहाँ पे advice चाहिए होती है. You need to know where your money is going. You need to know what your money is worth. Then some popular NFT projects जो कि Azook ने बनाए हैं for our clients are Lazy Lines, the Dodge Pound, Member One DAO, and the Business Dogs. I'll be sharing these with you.
Basically, all of our assets, they're usually posted on OpenSea. So on OpenSea, top 400 mein hamare NFTs, they're already published. For example, there's this Lazy Lines NFT. As you can see, there are over 10.1K items, and there are over 5,000 owners of these NFTs. And there are a lot of people investing in it. The lowest floor price of the Lazy Line NFT is 1.72 Ethereum. As you can see here, कि हम उनको ये provide करते हैं, we provide the NFT, the basic ground of it, the computer coding side of it, and then the client goes on and upgrades it and uses it for their own benefit. They drag in investors, but the starting point जो है, the selling point is what Azook Studios give them. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे Doge Pound पे भी देखें, so यहाँ पे भी almost they're the same rankings. लेकिन यहाँ पे ये है कि the floor price for this NFT is 1.69 Ethereum, and यहाँ पे भी we've done quite an improvement. We give the client the basis, and then they go on to make it more interesting for their investors, as well as the member one classic. इसमें थोड़ी बहुत animation भी आ जाती है, आपकी digital art बहुत matter करती है इसमें. So basically it's their own personal, ऐसे कहने के their own personal stuff on the internet. अच्छा, मैं एक चीज सबको बताता हूँ कि फ्लोर प्राइस क्या होती है, क्योंकि अभी मैं वही कह रही थी कि फ्लोर प्राइस का मतलब होता है कि एक इथीरियम, जैसे इन्होंने अभी लाइंस का दिखाया था, लेजी लाइंस का, तो लेजी लाइंस का सबसे जो सस्ता इथीरियम है ना, कि उनकी लोएस्ट प्राइस वो 1.6 समथिंग इथीरियम है, कि उनका जो सबसे सस्ता एनएफटी है ना वो इतने का है. तो फ्लोर प्राइस को आप ये समझे, ठीक है. मैं जरा हसन भाई का माइक खोल दूं. Okay. जी, so like अभी जो मैम आपसे बात कर रही थी, that Azook has been amazing in its work, क्योंकि हमारे पास like इस वक्त being in like top 400 NFTs में हमारे 2 NFTs रैंक करते हैं, Lazy Line and the Doge Pound. Doge Pound is among top 200, I guess 197th rank है इसका दुनिया में, and like Lazy Line is on 290. So आप imagine कर सकते हैं, like our startup, our studio is like amazingly doing this work, and हमारे जिन लोगों ने इसमें invest किया over a span of 6 months, क्योंकि it's a 6-month plan, ठीक है. So like उनकी initial investment was like $2,000, $3,000, और आज उनका एक NFT is like $5,000 and $6,000 में एक NFT बिक रहा है, and like that's like 1.66 Ethereum, जो ना उनकी अभी लोअर प्राइस है. सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट रेशियो किस हिसाब से है. एक चीज के तो मैम आप मैं जरा 2 मिनट सबको समझाता हूँ कि क्या सीन चल रहा है, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पे एनएफटी का नहीं पता. अजूक स्टूडियो के साथ जो बेसिकली जो हमारा कोलैब है वो ये है कि ये हमें स्पेशली हमारे ग्रुप मेंबर्स को ये चीज सिखाएंगे और ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि आप मिंटिंग एंड ट्रेडिंग के अलावा एक अपना एनएफटी कैसे बना के बेच सकते हैं, क्योंकि मिंटिंग में आपकी गैस फीस लगती है और ट्रेडिंग में आपको एक इथीरियम की एक तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए, कि बेसिकली 2 इथीरियम 3 इथीरियम. तो इतनी इन्वेस्टमेंट हर बंदा तो नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो, जैसे $10,000 का, $20,000 का. लेकिन जिसके पास तकरीबन $5,000 है, $1,000, तो वो इन कामों में नहीं जा सकता. और मिंटिंग में आपकी इथीरियम की गैस फीस, अगर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट को भी मिंट करने जाए ना, तो उसमें आपकी 500 गैस फीस लग जाती है. I'll just add up यहाँ पे कि क्योंकि मैं पाकिस्तान में होता हूँ, और जो मैम है
वो इंग्लैंड में रहती हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान में आप जैसे प्लॉट में इन्वेस्ट करते थे किसी दौर में, ठीक है, लाइक इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद 5-6 साल का एक साइकिल होता है डेवलपमेंट का, और आप अपना एक एसेट बेच देते हैं। अब हम लोगों को इस चीज का एहसास दिलाना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में भी लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं कि वो डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें आपका टाइम स्पैन छोटा है। जहाँ पे आपको एक प्लॉट लेके उस पे 10-12 साल या एटलीस्ट 5-6 साल आपको रुकना पड़ता था, और वहां पे अगर आप NFTs में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपका लाइक 6 मंथ का एक पीरियड होता है, उसके बाद आपको प्रॉफिट जनरेट होने लग जाता है, ठीक है। सो ये जो एक बात है ना, इट्स लाइक अमेजिंग। तो अगर और मेरी सकी भाई से भी इसी बारे में बात हो रही थी कि हमारा गोल यही है कि हम आपको इकोनॉमिकल प्राइसेस में NFTs बना के दें। अच्छा, अब मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोगों को मिंटिंग का नहीं पता होगा, गैस फीस का काफी सवाल होंगे लोगों के, हर चीज सवाल। तो ये चीजें होंगी ना, ये हम रिकॉर्ड करेंगे सेशन इसी के बाद, क्योंकि रात तक इधर ही बैठे हैं अज़ूक स्टूडियो, तो चले जाएंगे। इनका सिर्फ हमारे साथ 40 से 30 मिनट का हमने इनसे टाइम मांगा था। तो अब सीन क्या होगा इनके साथ, ये हमारे डिस्कॉर्ड में भी आएंगे, इनका हम एक अलग सेक्शन बना देंगे। मैम रोज आपको खुद हेल्प करेंगी आपका प्रोजेक्ट वगैरह मैनेज करने में, ठीक है। अब उधर फिर हम आपको बताएंगे कि इनके प्लान्स कैसे हैं और आपको हम कैसे लेके चल सकते हैं आगे NFT की फील्ड में, ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हम अपना NFT आपको दे दें, आप हमारा NFT लेके बेच दें, लेकिन एक चीज मैं आपको अब थोड़ा स्टार्ट में बताता जाऊं कि NFT एक्चुअली एक पिक्चर नहीं होती। कि देखें जैसे आपके पास एक कोई भी आपके पास एक पिक्चर है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके पास एक पिक्चर नहीं है। NFT डिफरेंट पिक्चर्स में कॉम्बिनेशन बन के एक NFT बनता है, उसको फिर आप पोस्टिंग करते हैं। जैसे कि आपकी JPEG फाइल्स में से कोई 5,000 10,000 NFTs बनते हैं। अब आप एक ग्राफिक, अब आप कहोगे कि भाई मैं ग्राफिक डिजाइनर को पकड़ता हूँ, उसको मैं दूंगा 500,000 रुपए, वो मेरी फाइल वो मुझे एक फोटो बना के दे देगा। लेकिन क्या वो ग्राफिक डिजाइनर आपको 5,000 NFT 10,000 NFT हाथ से बना देगा? आप कहोगे चलो वो भी देख लेंगे। तो क्या क्या कोई आपको फ्लोर नहीं, वो सॉरी मैं क्या कहना है, प्री मिंटिंग प्री सेल की गारंटी देगा? अज़ूक स्टूडियो अभी तक हमें पहला ऐसा मिला है जो हमें प्री सेल की गारंटी दे रहा है, क्योंकि बाकी तो बहुत सारे लोग हैं तो जो कहते हैं कि भाई हम NFT आपको बना देंगे, बाकी बिकना या ना बिकना वो आपकी किस्मत, बंदे मदद करेंगे। लेकिन हम ऐसा था कि हमारे यहाँ पे ये ना जकी साहब, ये माजरत, मैं आपकी बात को बीच में काट कोई रहा मसला हूँ। नहीं। हमारे यहाँ पे लाइक हम अज़ूक स्टूडियो इज लाइक वाहिद है पाकिस्तान में जो ना आपको गारंटी देता है प्री सेल की, ठीक है, कि आपके एटलीस्ट 30% या 40% आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके NFTs की जो प्री सेल है उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। इस चीज के हम आप लोगों को गारंटी देते हैं, ठीक है। और लाइक ये गारंटी एज एन इन्वेस्टमेंट टूल पाकिस्तान में कोई भी नहीं दे रहा है इस वक्त। क्योंकि प्री सेल का मतलब कि आपके शुरू में जो NFTs आएंगे ना, तो आप लोगों को एक चीज पता चलेगी। और सबसे बड़ी बात, ओपन सी जैसे प्लेटफॉर्म पे जो आपके NFT, तो लोग पूछ रहे होंगे कि ओपन सी करते हैं, वो भी थोड़ी देर में समझे। कि जैसे बाइनेंस है ना, हमारे पास बाइनेंस पे कॉइन लिस्ट है, ठीक है, जो जिस कॉइन की ज्यादा हाइप होती है बाइनेंस उसको सामने ले आते हैं, हम देखते हैं भाई ये बाइनेंस ने सजेस्ट किया हुआ है, हम देखते हैं इसको, ये भी करते हैं वगैरह वगैरह। अब जब आपकी कॉइन की प्री सेल होगी तो ओपन सी पे आपकी कॉइन की तरह की छोटी बहुत हाइप बनेगी, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन अभी इस लेवल से है। अगले 2 साल में आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन है, ठीक है।
तो अभी भी मार्केट में कंपटीशन है, लेकिन प्री सेल की वजह से आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ होने लगेगी, फिर काम चल ये कोई ना सोचे, चांसेस बेटर है आपके पास। जी बिल्कुल, ये कोई ना सोचे कि भाई मेरा एनएफटी आया, मैं आते साथ ही वो एक इथेरियम का हो जाएगा। लोगों को 3-3 साल लग गए जब उनकी प्राइस, अब आप देखते हैं कि भाई ये बोर्ड एप्पल है, बोर्ड एप वालों का एक एनएफटी 800 इथेरियम का बिकता है। तो आप देखते हैं कि भाई 800 इथेरियम, अब ये भी तो देखें पीछे उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे कितने सालों से मेहनत किया, तब जाके उनका इट्स लाइक के ना हमारा ही प्रोजेक्ट था लेजी लायंस का, ठीक है, और लाइक उनके इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ 3 साल लगातार इस प्रोजेक्ट पे काम किया, एंड लाइक दिस टाइम दे आर इन टॉप 400, और लाइक डॉज वालों का भी यही था। इट्स लाइक इट टेक्स टाइम, ठीक है। ये ना आप इस एनएफटीज को आप ट्रेडिंग की तरह ना समझे। इट्स लाइक मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, अब आप जो कहेंगे लाइक 2 मिनट सर भाई, अब आप कहेंगे कि भाई एनएफटी हम खरीद के रखने हैं, तो वो हम उसमें भी आपको 1 साल तक एक एनएफटी खरीद के रखना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास, ठीक है, 2 इथीरियम तक की आपके पास है वो रेंज, 3 इथीरियम तक की है, 5 इथीरियम तक की, तो ठीक है, हम आपको इसके बाद प्रोजेक्ट्स भी बताएंगे। वो डिस्कॉर्ड में जो हमारा एनएफटी का सेक्शन है उधर भी प्रोजेक्ट्स बताऊंगा मैं, उसमें आप इंतजार कर सकते हैं कि जब उनकी प्राइसेस नीचे आए वो आप कर लें। लेकिन जिनके पास, अब देखिए मेरे पास अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कि मैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकूं, तो हमें फिर दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है। इसमें हमारे पास मेकिंग एंड सेलिंग होती, ठीक है। तो बात अभी यही है कि अज़ूर स्टूडियो के साथ जो हमारी डील डन हुई, ठीक है, अभी हम मेजर 10 लोग अपनी डिस्कॉर्ड से जो इस काम में इंटरेस्टेड होंगे, वो मैम अरूज मैम अरूज उनके साथ काम करेंगी, और उनके एनएफटी हसन भाई बना के ये मार्केटिंग होगी सारी, डिस्कॉर्ड पे आपकी कम्युनिटी बनेगी, इंस्टा पे बनेगी। फिर जब आपकी प्री सेल तक हमारी इनकी गारंटी होगी, प्री सेल के बाद जो आपको पैसा आएगा वापस, वो आप अपने रोड मैप पे लगा सकते हैं। अगर रूज मैम कुछ और कहना चाहें। मैं कुछ और नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू कंटिन्यू कि सर्विसेज तक चले जाते हैं कि वन बाय वन अगर हम इन्हें बता दें कि व्हाट बेसिकली आर द सर्विसेज जो कि अज़ूक आपको दे रहा है। जैसे कि ज़की ने बताया है, ज़की ने सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा कि ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे जो हम आपको सर्विसेज देंगे। एक प्रॉफिटेबल एनएफटी इन्वेस्टमेंट प्लान पूरा का पूरा, उसके अलावा क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग एक आसान काम नहीं है, स्पेशली विद एन एनएफटी, क्योंकि आपको उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी देखना पड़ता है। फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और जो आपके जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनके लिए जो आपने यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाना है अपने एनएफटी के लिए, वो भी आपको दिखाना, वो भी हम आपको बताएंगे, बट वो आपको कैसे यूज़ करना है वो भी दिखाना है। फिर प्रोजेक्ट वेबसाइट डेवलपमेंट, देयर इज दिस whole thing about project website development, क्योंकि you must have a proper background for your NFT. Then there is a community establishment as well. जो आप इन्वेस्टर्स को दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ प्लेस इन मेटावर्स दैट यू आर गिविंग टू इन्वेस्टर्स, तो उसको डेवलप करना, उसकी एक कम्युनिटी बनाना, एंड दैट ऑल्सो ट्रस्टेड कम्युनिटी, वो आसान काम नहीं है। देन देयर इज ऑल्सो, जैसे कि ज़की ने बातों बातों में बताया था कि पूरा एक रोड मैप जो आपको बना के देंगे आपके एनएफटी के डेवलपमेंट के लिए, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो वही जो ये हसन और ज़की बार बार बात कर रहे हैं कि अज़ूक, the one thing that is unique about Azook is its pre-sale, कि आपको सारी वो बना के सब कुछ आपको एज अ सिल्वर प्लेटर पे दे के देंगे। There's this a pre-sale thing जो कि पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिल रहा। So that is why you should go for Azook. Thank you so much. Are there any questions? जी, तो अब एक एक करके आप हैंड रेस कर लें, तो कुछ लोगों के हम सवाल ले लें जिनको थोड़ा मसला है। मैं वेट कर रहा हूँ, नीचे आपके यहाँ पे जो है ना रिएक्शंस, उसमें आप ठीक है।
मोमेंट। जी शेख हर्ष भाई आपको मैंने किया अनम्यूट, आप आ जाए। जी ज़की भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि अभी टीम ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया एनएफटीज के बारे में जी और काफ़ी ग्रीन फ्लैग्स भी शेयर किए हैं, जी बट ऑब्वियसली जो एक चीज़ मुझे कंसर्न लग रही है वो ये है कि हम क्रिप्टो, मतलब मुझे पर्सनली एनएफटीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये मैं अभी डिस्क्लेमर आपको दे दूं, तो जी मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, क्रिप्टो ट्रेडिंग में हमें एक डिस्क्लेमर होता है कि हमें रिसर्च करनी है या टीम हैक हो जाए या व्हाटएवर, जो भी उसके रेड फ्लैग्स हैं तो उसकी वजह से कुछ लॉसेस आ जाते हैं, तो आप एक क्वेश्चन अपने माइंड में रखते हैं। तो एनएफटी मार्केट में मुझे ये जानना था कि क्या रेड फ्लैग्स आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होगा कि इस मार्केट में सारे ग्रीन फ्लैग्स ही हैं और एवरीथिंग इज गोइंग राइट। तो वो मुझे अगर आप टीम से कह देंगे शेयर कर दें, तो हम ये है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए मैं एटलीस्ट अपने माइंड में वो डिस्क्लेमर रख लूँ कि इस मार्केट में ये हो सकता है, या एनएफटी आपका आई डोंट नो बर्न हो जाए या हैक हो जाए या ठीक व्हाटएवर है, जो भी है, ये या चीज जो भी इश्यूज हैं। ठीक है, ये चीज मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक चीज होती है स्कैम का, कि सबसे सबसे सब लोगों को लगता है कि भाई कहीं हमारे साथ एनएफटी में स्कैम ना हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ा डर ही ये होता है एनएफटी में स्कैम का। ठीक है, तो एक चीज के जब आप कोई प्रोजेक्ट ट्रेड कर रही होती है ना, उसमें ये आपको होता है कि भाई कहीं मेरा जो मैं जिस एनएफटी में पैसा लगा रहा हूँ वो कहीं स्कैम ना निकल है। ठीक है, जैसे मेरा एनएफटी एबीसी नाम का, उस पे मैं अब लगाऊंगा पैसे, तो दो मिनट। अच्छा, जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है एबीसी नाम का, मैं अगर उस पे कोई भी प्रोजेक्ट है एबीसी नाम का, मैं अगर उस पे उसका एनएफटी खरीद रहा हूँ, तो बेसिकली पिछले दिनों भी एक मेरे पास आया था सीन कि उन्होंने सिर्फ जो हमारे पास, ये 2 मिनट, उन्होंने जो जो जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने सिर्फ प्री मिंटिंग तक प्रोजेक्ट को की हाइप रखी थी। जब वक्त उनके रोड मैप का आया था, तो वो बिल्कुल ही प्रोजेक्ट को छोड़ के भाग गए थे। वो लोगों के हेलो, एनएफटी एम की, आई ऑडिबल? जी, और लोगों के अच्छा, एनएफटी की तो प्राइस आ गई थी नीचे। तो ये एक आई जस्ट स्कैम है। टेक ओवर यहाँ से ना सकी भाई। तो ये सर सीन कुछ ऐसा है कि जैसे ट्रेडिंग में ट्रेंड्स होते हैं ना, पिछले दिनों शायद अब लाइक मैं जाती तौर पे ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन पिछले दिनों लाइक इथेरियम लो था, बिटकॉइन हाई था, ऐसे कुछ होता है हर मार्केट में। ऐसे ही लाइक ऑन द सेम पेस हमारे पास एनएफटी मार्केट में भी ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। I'll just show you something, और लाइक उससे शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस चीज का कि हमारे पास ट्रेंड्स चेंज कैसे होते हैं। सो here you go on OpenSea। अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही होगी जी जी मोस्ट हो रही है। प्रोबेबली, ये तो आप I'll थोड़ा just थोड़ा जल्दी करें क्योंकि मीटिंग में सिर्फ 10 मिनट, तो थोड़ा ट्राई करेंगे जल्दी हो जाए। अच्छा, ट्रेंड्स कुछ ऐसे होते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर रैंकिंग शो हो रही होगी हर एनएफटी की, उसकी प्राइस की, उसके ट्रेडेड वॉल्यूम की, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि हमने कहाँ पे जाना है, और लाइक जूक आपकी कहाँ हेल्प करता है, हमें मार्केट ट्रेंड्स का अंदाजा होता है। जैसे कि आई जस्ट टेल यू समथिंग कि ये डोड एप का ना एक ना प्रोजेक्ट था, ठीक है, एंड लाइक ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। इसने एनएफटी मार्केट पे ऑलमोस्ट 4 से 5 बार रूल किया, ठीक है। इसकी बहुत हाइप थी, ठीक है। इसकी लाइक इसकी जो लोअर प्राइस है वो वही इस वक्त 19.93 इथीरियम है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं ये जो लैंडस्केप इस प्रोजेक्ट का क्या होगा। लेकिन जैसे हर मार्केट अपने आप को चेंज करती है, तो लोगों ने एक शिफ्ट लिया और लोग आए
दूसरे प्रोजेक्ट की, ये इस वक्त आपके पास एक प्रोजेक्ट है ज़ूकी नाम का, लाइक जाती तौर पे मैं आपको जो राय दूंगा ना कि ये प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए कि अगर कहीं पे इथेरियम की प्राइस नीचे आती है तो ये प्रोजेक्ट मस्ट बाय प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमें मार्केट्स का अंदाजा होता है। और जो बात मैम ने भी की है कि हम आपको आपका प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम आपको इस चीज का एहसास दिलाएंगे कि आपने किस तरफ जाना है। आपकी जो आर्ट वर्क होगा उसकी टाइप क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट, एनिमे, एनिमल, बीस्ट, ठीक है। और लाइक मार्केट में इस वक्त कौन सी चीज है। सो आई होप सो कि आपको इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ है कि इस मार्केट में भी उछाल और लाइक ऐसी चीजें होती रहती हैं। अच्छा, अब काफी कंफ्यूज होंगी कि NFTs क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो इस मीटिंग के 10 मिनट बाद एक और मीटिंग होगी जिसमें मैं वो सर होंगे जो आपको हर चीज एक्सप्लेन करेंगे NFT के बारे में। बाकी अजूक स्टूडियो हमारे साथ डिस्कॉर्ड में भी आएंगे। ये फॉर एवरीवन हमारा होगा, जिसको कहते हैं फॉर एवरीवन के यहाँ पे NFT का होगा। तो वहाँ पे फिर ये आपको बताएंगे कि कि ये लोग आपको अपनी ऑफर्स कैसे दे सकते हैं और आप कैसे इनसे जाके बात कर सकते हैं। तो थैंक्स टू अजूक स्टूडियो के वो आज आए, उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ये प्रेजेंटेशन भी हम डिस्कॉर्ड में डाल देंगे। मुझे पता है कि मीटिंग थोड़ी छोटी हुई है, लेकिन डिस्कॉर्ड में भी डाल देंगे। और अगर ज्यादा सवाल हुए लोगों के, हम वीकेंड पे भी एक और मीटिंग इनके साथ रख लेंगे। तो अगेन थैंक्स टू द अजूक स्टूडियो। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो एक सवाल हम वो ले सकते हैं। मोहम्मद सनी अब्बासी, आपको मैं करूँ अनम्यूट, आप आ जाए। Yes, I do have a question कि अगर हमें like खुद से अपनी NFT like create करनी है, like कि मैं like चाह रहा हूँ कि मैं अपनी NFTs खुद बनाऊँ और like उसको खुद सेल करूँ, like उसका क्या प्रोसेस होगा। और like मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है NFTs के बारे में, बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, ये like उसका क्या आपको प्रोसेस होगा। जी मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले एक ग्राफिक डिजाइनर, या अगर आप खुद ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं तो आपको एक अपनी रफली सा एक पिक्चर का एक स्केच होना चाहिए। फिर आप उसके तकरीबन 5,000 से 10,000 NFT विद द हेल्प ऑफ पाइथन, C++ एंड अदर लैंग्वेजेस, आप वो उसके 5,000 से 10,000 NFT जनरेट करके उनके जैसे डिफरेंट क्लोथ, तो हर चीज उसकी डिफरेंट करके आप उसको ओपन सी पे अपलोड कर देंगे। ओपन सी पे अपलोड करने के, देखिए मेजर लोग यही करते हैं वो ओपन सी पे अपलोड कर देते हैं। लेकिन ओपन सी पे अपलोड करते बाद किसको पता होगा कि आपका NFT उधर आ गया है? मेरे अलावा चले मुझे तो पता होगा, और किसको पता होगा कि उधर आपका NFT आ गया? तो इधर फिर हम एक टीम को कंसल्ट करते हैं कि आप हमारे साथ काम करें और आप हमारा NFT मशहूर करें विद इन द मिनिमम रेंजेस। इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप एक पेन की भी फोटो उठा के ना ओपन सी पे डाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उस पे आपकी सिर्फ गैस फीस जाएगी और रिटर्न में आपका कोई NFT नहीं खरीदेगा। ओपन सी पे ऐसे लाखों प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो लोगों ने आलतू फालतू पिक्चर्स डाली हुई हैं, लेकिन सिर्फ सेल हमेशा इम्पोर्टेंट वाले ही होते हैं। उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीजन होती है। इस जूम के बाद एक और जूम होगा, उसमें NFT का A to Z आप सबको मैं समझा दूंगा, उधर आपके सारे मसले सही हो जाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपने बोला कि एक NFT की 5,000 वेरिएशंस होनी चाहिए, जी, तो 5,000 एक स्पेसिफिक नंबर है या इससे कम भी हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि आई नो आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, जी, लेकिन जैसे अगर मैं उसकी वेरिएशंस बनाऊं तो जी। मैं उसकी वेरिएशंस फोटोशॉप पे नहीं बना सकता। एग्जांपल, अगर उसकी क्लोथ्स चेंज करने हैं तो मैं उसके बहुत सारे वेरिएशंस बना दूं कि अलग अलग क्लोथ्स हैं, अलग अलग एवतार्स हैं और समथिंग, या उसको C++ या पाइथन पे करना होगा। नहीं, इसको आपको सी, क्योंकि देखें आप
देखिए वेरिएशन ऐसे बनते हैं, मैं जरा हसन भाई को क्योंकि वो ज्यादा एनएफटी बनाते हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इस बारे में। चलो ओके। जी, सो अच्छा, I'll just ask you a question कि क्या आप एक आर्टिस्ट हैं या फिर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं? अगर आप इन दोनों में बहुत फर्क होता है। नहीं आप एक मतलब आई आर्टिस्ट हैं? कैन, जी मैं लाइक आर्टिस्ट वाली पोस्ट लाइक मैं पहले से बना आया हूँ, बट एनएफटीज ठीक का मेरा कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल एनएफटीज मेरे दोस्त जो होते हैं ना, वो लाइक इन अ बंच ऑफ 1000, 5000 एंड 10,000 होते हैं, ठीक है। और Okay. अगर फॉर एग्जांपल आपने 10, पहली बात तो ये कि आप 1000 तस्वीरें अपने हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स लाइक जो 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 एक जो इंसान की कैपेसिटी होती है, उसके अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं है। सो आप लाइक एनएफटीज को, एक पिक्चर को उसके एसेट्स में तोड़ते हो, और लाइक उसके बाद हमारे पास अज़ूक स्टूडियो में हमारे पास कोडर्स हैं जावास्क्रिप्ट के, पाइथन के और सी शार्प के, ठीक है, जो आपके एनएफटीज जनरेट करते हैं। और एनएफटी जनरेट करने के बाद आपके हर एक एनएफटी के साथ एक एनएफटी की फाइल जनरेट होती है जिसके 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 अंदर उसके वो जो फाइल होती है ना दोस्त, उसके अंदर उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो लाइक बैक एंड पे पूरी ब्लॉकचेन होती है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, आप एक पिक्चर ड्रॉ कर लोगे, लेकिन वो असल में एक तस्वीर ही है, वो एनएफटी नहीं है। ओके, तो लाइक अगर एग्जांपल, अगर मैंने एक आर्ट वर्क बना लिया और लाइक मुझे प्रोग्रामिंग वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आता है, तो ऐसा कर सकते हैं मैंने एक आर्ट वर्क हाँ बनाया अब कि लाइक मैं अज़ूक स्टूडियोज लाइक वो मेरे बिहाफ पे कोडिंग वाला पार्ट कर हाँ दूं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा अगर आप एक आर्टिस्ट और लाइक आप उसमें लाइक आप ना हमारी टीम से बात कीजिएगा, आप लाइक आप